आपने चर्च का नाम देखा है ना, क्या है? एबीसी पवाई, a house of signs and wonders. If the church of Jesus does not have the power of the Holy Spirit, then this is just a counseling center. अगर परमेश्वर की कलीसिया में सामर्थ नहीं है तो ये सिर्फ एक काउंसलिंग सेंटर है, where only behavioral alteration happens, you know. आप आते हैं, आपको सिखाया जाता है कैसे बोला जाता है, एक आदमी अच्छा कपड़ा पहन के आता है, आप बैठ के 2 घंटा सुनेंगे घर पे जाके. बट द चर्च इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर होली प्लेस. परमेश्वर का जो घर है वो बाकी सारी पवित्र जगह जो कही जाती है और सारी इंपॉर्टेंट जगह से फर्क इसलिए है क्योंकि आसमान का खुदा यहां पर रहता है. कैन यू से आमेन? गॉड लिव्स हियर. And when God lives here, the power of the Most High God resides here. Hallelujah. And every church in the end days, I will tell you, if the church of Jesus does not carry power, it will soon be eliminated. And that is the reason I named this church a house of signs and wonders. चिन्ह और चमत्कारों का घर. The reason being is it challenges me every single time I'm here. हर बार वो मुझे एक चुनौती में डालता है कि you have named your church a house of signs and wonders. Now let me tell you something. Go to Mark chapter 9:23. मरकुस की किताब उसका 19 अध्याय और उसका 23 वचन. एक बार की बात है जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ he went with his disciples to pray on the mountain. 3 of his disciples and some of his disciples were left down. कुछ चेले नीचे थे. Now what happened is a man came with his boy. एक आदमी आया उसके बेटे के साथ. And this is my greatest fear. ये मेरा सबसे बड़ा डर है. That when a person in need comes to me knowing that I am a man of God. When a person, एक व्यक्ति जब मेरे पास आता है जानते हुए कि मैं खुदा का एक सेवक हूं. And he goes depressed or he goes unhappy from me knowing that I am a man of God. This is my greatest fear, to replicate Jesus. अरे आप कैसे यीशु मसीह बन सकते भाई? वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं. He was the son of God. He was man 100% and he was God 100% when he was on earth. And Paul says, become like me as I become like Jesus. So everybody sitting here has to aim that by the end of the year, you are more like Jesus, not like Pastor Shalom. You are more like Jesus, not this church. You are more like Jesus. Hallelujah. Somebody say, I want to be like Jesus. मुझे यीशु जैसा होना है. इस साल के अंत तक आप में से कोई किसी और जैसे मत बनिए, यीशु जैसे बनिए. Hallelujah. That is my goal. And that is the reason when somebody comes to me, it is very important that I, as a man of God, and you as a man of God, and you as a woman of God, आप परमेश्वर के दास और दासी होने के नाते ये आप पर और मुझ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जब दुनिया के लोग परेशानी में हो तो आप और मैं परमेश्वर के अभिषेक से उनको छुड़ाएं. That is what Oral Roberts said. Oral Roberts नाम के एक बहुत बड़े खुदा के सेवक थे. And he said that the job of a minister is to heal the broken hearted by the anointing of God. आपका और मेरा काम परमेश्वर के सेवक. See, listen. People who are watching online, people who are from this church, who have not come, and people who are sitting here right now. You are not just merely members. You are servants of the Most High God. आप परमेश्वर के सेवक और सेविकाएं हैं. Otherwise, you wouldn't be here on a Wednesday evening fasting your stomach out. कितने लोगों का पेट चिपक गया अभी अंदर ही अंदर? पेट अंदर चिपक. And that is the reason we are doing, so that when somebody comes to you, you know that what you carry, the thing that I carry, I give unto you. Peter told in Acts chapter 13, जो मेरे पास है लंगड़े, मेरे पास सोना नहीं है, मेरे पास चांदी नहीं है, but as I have, I give unto you. And that is the level every believer should come to, where you know what you carry. You cannot give something to somebody you cannot carry. Hallelujah. That's why when we call preachers in this church, I don't call a preacher who is doing not good in his ministry, जो दुखी हो गया, and just to encourage him I'll call him. No.
We call heavy builders heavyweight champions, because if somebody carries something, only they can deposit. अगर कोई कुछ अपने अंदर है, वही सिर्फ आप में डिपॉजिट कर सकता है. A broken person will only deposit brokenness in you. A depressed person will only deposit depression in you. Hallelujah. But as I, जो मेरे पास है, बोलिए जो मेरे पास है, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं. And that is the job of every believer. That is the reason we are praying and fasting, because Jesus told in Acts chapter 1 to his disciples, tarry, बने रहो, यरूशलेम में रहो, जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पर नहीं आती है. Till the time you receive power, do not leave this place. That is what we are doing right now. It's like the Acts chapter 2, the day of Pentecost. Pentecost के दिन के मानिंद 120 लोग क्या कर रहे थे? 120 लोग पेंटिकोस्ट के दिन क्या कर रहे थे? दुआ प्रार्थना कर रहे थे. They were waiting for the promise of the Holy Spirit, कि कब रूह कुद्दूस आएगा और हमारे अंदर सामर्थ आएगी. Hallelujah. I pray today that none of you, आपको मालूम है प्रॉब्लम कब होती है? When you, आप पास्टर तो कह रहे जाके दुआ करो, हम जाके दुआ करेंगे. पास्टर कह रहे दुष्ट आत्माओं को निकालो, हम जाके निकालेंगे. आपको मालूम है, हम कह रहे हैं आपसे, चर्च का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि संडे को हम लोगों को इतना खाना खिलाते हैं, बट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई काम ही नहीं देते करने के लिए. You cannot, that's the reason आने वाले दिनों में we will go out evangelizing. I told God, I said, as soon as I have 30 people in the church, I will begin evangelizing in the city of Powai. No matter what. Because I need a team of 30 prayer warriors to back me up. Hello? So as soon as it's done, this year is going to be evangelizing. निकलेंगे आगे. We're not going to different churches, we're not going to different believers. We're going to people who do not know Jesus, who need to be healed by the power of the Holy Spirit, because that is what I carry. That is what you carry. Hallelujah. You don't carry controversy in you. Don't carry gossip in you. Don't carry jealousy. अपने अंदर जलन मत कर. Because that, what you have, you will give to others. But today your whole aim should be, Father, I've come empty stomach so that I can receive the power of the Holy Spirit. When you carry the power of the Holy Spirit, people cannot deny you. Nobody can deny a miracle. Hallelujah. You are miracle workers. मैंने कहा you are miracle workers. आप चमत्कारी लोग हैं. You will work miracle. That is what Jesus said, right? When I go, जब मैं जाऊंगा, you will do even greater things than I did. Hallelujah. So what happened? देखिए, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ दूसरी भाषा में लिखा है संभव है. आगे 24. बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर. देखिए, एक ही लाइन में दो चीजें लिखी गई है. लिखा है कि मैं विश्वास भी करता हूं और लिखा है कि मैं अविश्वास को, मतलब आज विश्वासी लोग विश्वासी हो सकते हैं अविश्वास के साथ. आपको मालूम है परमेश्वर को रंग नहीं दिखते. गॉड डज नॉट सी कलर्स. द ओनली टू कलर्स गॉड सीज इज फेथ एंड अनबिलीव. दो रंग जो केवल परमेश्वर देखता है वो विश्वास और अविश्वास है. आप दिन रात रोइए, बट कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर केवल विश्वास से कार्य करता है. यू नो व्हाट हैपेंड? हन्ना हर संडे जाती थी चर्च और रोती थी, मेरे को बच्चा चाहिए. उसको बच्चा नहीं हुआ. एक दिन एली, चर्च के पास्टर ने उसको देखा. चर्च के पास्टर ने मिस जज कर दिया. मिस जज करके कहा, तू तो पी के आई है, यू हैव कम ड्रंक. वो कह रही, मैं पी के नहीं आई हूं. बट व्हेन एली सेड, कल इस साल में, नेक्स्ट ईयर दिस टाइम you will have a child. That was a prophecy delivered by a pastor who just misjudged the lady. But you see, as soon as the prophecy was released, that had generated faith in Hannah. मतलब इतनी बार जब वो खुदा के घर में आई, कोई भविष्यवाणी नहीं हुई. बट जब वो इस बार आई, तो उस बार एली उसने भविष्यवाणी करी और उसके अंदर एक विश्वास जन्मा. और जब ये विश्वास जन्मा, तब आसमान के खुदा ने कार्य किया. इसका मतलब यह है कि गिड़गिड़ा कर रोते रहिए. God does not respond to tears. God responds to faith. Hallelujah. You can pray a powerful prayer without crying.
आप बगैर रोए सामर्थ्य दुआ कर. हैव यू सीन मैन ऑफ गॉड ऑफ हाई कैलिबर? खुदा के सेवक जो बहुत ज्यादा कैलिबर के होते हैं, दे जस्ट स्पीक 2-3 वर्ड्स एंड इट्स डन. इट्स 2-3 वर्ड्स, इट्स नॉट इलैबोरेशन नहीं होता. इट्स जस्ट, इवन सी जीसस, तलीता कुमी, राइज अप. 2-3 words and that is the prayer that is answered. Because भले ही शब्द ज्यादा ना हो, but विश्वास भर भर के भरा है. Hallelujah. As what I carry, I give unto you. If I did not carry the fire of the Holy Spirit, I could never give you the fire of the Holy Spirit. Hallelujah. अपने अंदर जो है वही आप दे सकते हैं दूसरे को. सर आज यहां से निर्णय लेकर जाइए तीसरे दिन पे कि खुदावंद आज तेरी सामर्थ्य यहां से लेकर जाएंगे. कैन यू से आमेन? आगे सुनिए क्या लिखा है, वर्स 25. जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना. So you have to understand that problems have spiritual roots. Many problems, बहुत सारी परेशानियां जो आपके जीवन में है, उसकी जो रूट है, उसकी जो जड़ है, वो आत्मिक है. I remember this one case in my church in Kalyan, and I will never forget it. None of the church members you will ask, they will forget it. We have a boy, and he got somehow demon possessed. I mean, I'm telling you, demon possessed. Literally, मतलब ऐसा केस हमने अपने चर्च में कभी नहीं देखा. The first night when I went there, I could not imagine that boy, इसकी उम्र इससे छोटा था बच्चा, बट वो खादिमों का गला पकड़ रहा था. हमको इतनी दया आई, बिकॉज दैट गाय नेवर स्पोक. वो बात करने वालों में से नहीं था कि मतलब अपने अपने में बात करेगा, बट पास्टर्स के साथ ऐसे नहीं. और 3 बच्चे, 3 लड़के, ये घोड़े दिख रहे हैं पीछे, 3 घोड़े वो लड़के के ऊपर बैठे हुए. ही वॉज सो वायलेंट. एंड माई डैड कॉल्ड मी. आई एम माई डैड्स राइट हैंड फॉर इवल स्पिरिट केसेस. So my dad called me and said, come. I went and I saw, and we started in the name of Jesus, and we started, and this guy, उसका प्रॉब्लम मालूम है, is still there. उसका प्रॉब्लम क्या है कि वो चलता था, and as soon as the spirit manifested, वो मुंह के बल गिर जाता था, बस गिर जाता था. as soon, मतलब आप में जान खत्म हो जाएगी, कैसे आप गिर जाएंगे, वैसा बच्चा गिर जाता था. That was his problem. रात के 12 बजे ठीक यही हुआ. जब भीड़ जमा होने लगी, बोलिए भीड़ जमा होने लगी, तो पापा ने कहा चाली में भीड़ जमा हो रही है, इसको हॉस्पिटल ले जाओ. मैंने पापा से कहा पापा ये इवल स्पिरिट का केस है. पापा ने कहा बेटा ले जाओ अभी, नहीं तो रात में गड़बड़ हो जाएगी. चाली में आप समझ सकते हैं. हम उस बच्चे को बहुत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लेके गए, और जब उसको उस बेड पर रखा, तो एंड पूरा चर्च इसकी गवाही, आप पूछ सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. जब उसको डॉक्टर जब आया, मैंने डॉक्टर से पहली मुलाकात में कहा, मैंने डॉक्टर ये दुष्ट आत्मा का केस है. मतलब वो लोग क्या यूज करते हैं, बाहर का है, बाहर का कहते हैं, बाहर का है. तो मैंने कहा डॉक्टर ये बाहर का है. तो डॉक्टर कहते हैं हम देख लेंगे. डॉक्टर ने 4 नींद का सोने का वो इंजेक्शन दिया. कितना? हाँ, 4 पूरा कैप्सूल दिया. वो बच्चा सोया नहीं. थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आता है, कहता है मुझे भी लगता है उसको बाहर का है. मैंने कहा तुमको पहले ही कहा था मैंने. स्पेशलिस्ट आया रात के 3 बजे, उसको एडमिट किया गया. 1 हफ्ता बेचारा बच्चा एडमिटेड था, दवाइयों पर था. उनको केस समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, और चर्च दुआ कर रहा है. आखिरी सेकंड लास्ट डे पे डॉक्टर ने कहा बोन मैरो टेस्ट करेंगे. बोन मैरो मालूम है आपको, हड्डी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन डाल के बोन मैरो निकाला जाता है. लीलावती में उसका टेस्ट होता है. वो कराया, उसका रिपोर्ट में कुछ नहीं आया. आखिरी दिन पे डॉक्टर ने मुझसे मुलाकात नहीं करी, मालूम है, क्योंकि मैंने डॉक्टर से कहा था डॉक्टर ये बाहर का है. और डॉक्टर ने मुझसे कहा, मुझे कोई, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट द डॉक्टर्स, बट व्हेन वी टेल यू इट्स समथिंग स्पिरिचुअल, इट इज समथिंग स्पिरिचुअल. एंड द डॉक्टर डिड नॉट रिसीव इट दैट टाइम. उसने मुझे रिब्यूक किया जब मैंने उसको पहली बार कहा. ही रिब्यूक्ड मी. आई सेड ओके, नो प्रॉब्लम. द लास्ट डे, इवन टॉकिंग टू अस, द डॉक्टर गेव अस द डिस्चार्ज. इजंट दैट ट्रू मामा? Just gave us the discharge. No conversation. क्या हुआ? Is he well? Is he not? He's okay now.
he's okay. But that evil spirit case, many natural, बहुत सारे शरीर के प्रॉब्लम्स की जो जड़ होती है वो आत्मिक होती है. And if you are not able to scan the spiritual root, you will just keep treating the natural thing and it will never go off. Many people's families have broken marriages. Now you might think कि ये हमारे से शुरू हुआ है. No, it has a spiritual lineage that has been coming, because curses remain for 4 generations. Always remember, श्राप ये 4 पीढ़ियों तक रहता है. If it's going to be poverty, it's going to be there for 4 generations. और इन 4 जनरेशन में कोई ना कोई उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर ही देता है. Hallelujah. And this keeps on going on until and unless by the Spirit of God it is revealed कि इस पे प्रकाशन गिरता है कि this is the problem. Hallelujah. I told you about this lady who was not able to get pregnant. हर बार उसका बच्चा गिर जाता था. The second time we delivered her, the second time we started the deliverance thing, this lady took out every jewelry in her body. So it was actually a queen. It was a queen spirit, because उसने पहले अपना मुकुट निकाला और उसने सब अपने गहने निकाले. पहले टाइम पे उसने स्पिरिचुअली सब निकाला, सेकेंड टाइम पे उसने फिजिकली सब निकाला. एंड जब वो हो गया तो हमने उसके पास देखा, इसलिए भाभी हमारे पास देखा. एंड यू कम टू नो व्हेन यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, जब आपके स्पिरिचुअल सेंसेस एक्टिव होते हैं, आपको समझ में आता है दुष्टात्मा निकली है कि नहीं निकली है. बिकॉज याद रखिए कि दुष्टात्माओं को झूठ बोलना और बहकाना बहुत अच्छे से आता है. वो आपको ऐसा उल्लू बनाएंगे आप सोच भी नहीं पाएंगे. मैं सही बता रहा हूं. और हमने देखा और मैं देख के हंसा और मैंने कहा अभी तक नहीं गए हो ना. मैं कह रहा, उसने कहा नहीं जाऊंगी क्योंकि इसके पति के साथ मैं रहती हूं. वाह. हम चले छोड़ देते, लेडी चली जाती बेचारी घर पे. जब एक दुष्टात्मा छोड़ती तो बाइबल कहती दैट इविल स्पिरिट गोज इनटू ड्राई प्लेसेस, सूखे सूखे. दैट्स व्हाई वी नेवर डू और वी नेवर इंडल्ज इनटू हाफ डिलीवरेंसेस. दैट्स व्हाई जब कोई कलीसिया में आता है, आपको पता चलता है कि यू हैव अ प्रॉब्लम, यू गेट इट डिलीवर्ड. आई एम नॉट सेइंग come back to church, but at least come back to church till the time you are completely relieved from that. Hallelujah. Now that after we delivered that lady completely, 5 months pregnant, and soon we will see the baby and the glory of God. But आपको और मुझे समझना जरूरी है कि बहुत सारे शारीरिक प्रॉब्लम्स के जो जड़े हैं वो आत्मिक होते हैं. Just like in this case, अगर कोई इस बच्चे को देखता, चेले बच्चे को देखते तो कहते बच्चे में प्रॉब्लम है. नहीं, यीशु मसीह ने आके क्या किया? दुष्टात्माओं को धमकाया. दैट इज द थिंग वी डू इन डिलीवरेंस. पहले दुष्टात्माओं को धमकाते, वी सेंड देम बैक टू द पिट एंड देन यू रिस्टोर द पर्सन. जो जिस आदमी पर बीती है उसको परमेश्वर जी में जी लाता है. ही रिस्टोर्स दैट पर्सन. हालेलुया, हालेलुया. सो द रीजन वी आर रीडिंग दिस, आगे जाइए, नेक्स्ट वन. तब वह चिल्लाकर और उससे बहुत मरूड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सो गया. यहां तक कि बहुत लोगों ने कहा कि वह मर गया है. जी आगे. परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उससे उठाया और वह खड़ा हो गया. जी आगे. जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उससे क्यों निकाल ना सके. और यह क्वेश्चन, हर बिलीवर को इस क्वेश्चन ने ऑफेंड करना जरूरी है. आप अगर अपने आप से सवाल नहीं पूछते कि क्यों यह काम मेरी दुआ के बाद नहीं हुआ, तो आप मसीहत को बहुत आरामदायक तरीके से लेते हैं. दिस even though believers could not do, they were so humble that they came to Jesus and said, भाई हमको बता हम क्यों नहीं कर पाए. I have done this many a times and that is the reason. आज भी जब मुझे कोई कहता है कि please pray for us, if it is a very important case and I know that this needs discernment, इसको परखने की जरूरत है, इसमें परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है. We don't just pray ऐसे ही. We'll take one day, we'll fast for it. 2 दिन होगा, probably 3 दिन होगा, उपवास करके और फिर हम दुआ करते हैं. Because that is the blueprint that Jesus gave to his disciples. Somebody say blueprint. आपको मालूम है, being a preacher is very easy. Ask me why. Because I just have to shout the scriptures and the Bible. मुझे सिर्फ परमेश्वर के वचनों को चिल्लाकर आपको बताना है. And it does the job. किसी ने मुझे कहा, पास्टर
आप कितना चिल्लाते हैं, तो मैं दुखी हो गया। तो कह रहे आपका चिल्लाना हमें अच्छा लगता है। मैंने कहा आप मेरे सही फ्रेंड हो, यू आर माय ट्रू फ्रेंड। हालेलुया, हालेलुया। This is the blueprint that Jesus gave to his disciples. Such kind does not come out but by prayer and fasting. ऐसी वाली या ऐसी दुष्ट आत्माएं बाहर नहीं आती केवल प्रार्थना से, बट उन्हें उपवास की भी जरूरत होती है। हालेलुया। I want everybody sitting here, हर एक शख्स जो यहां पर बैठा है, on this Wednesday evening, we are just beginning with our year. हम बस अपना साल शुरू कर रहे हैं। एंड देयर आर मेनी अनडन थिंग्स राइट नाउ, बहुत सारी चीजें जो पूरी नहीं हुई है, दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टू हैपन। आप चाहते कि ये चीजें ये साल में हो, बट आई वॉन्ट यू टू हैव द फेथ, बिकॉज ओनली थिंग दैट जीसस कैन नॉट वर्क इज वेयर देयर इज अनबिलीफ। यू नो द नेक्स्ट, द सिनोनिम ऑफ अनबिलीफ इज व्हाट? अविश्वास का दूसरा मतलब क्या होता है? आलसी होना, बीइंग लेजी टू बिलीव, आलस करना। पीपल हु आर लेजी, जो आलस करते हैं विश्वास करने में, आर अनबिलीवर्स। अनबिलीवर्स, दैट इज द वन कैटेगरी जीसस कैन नॉट वर्क विथ। वो कोड़ियों के साथ काम कर लेगा, वो गुस्से वालों के साथ काम कर लेगा, यहां तक कि यहूदा इस्करियत जो उसको मारने वाला तो उसके साथ भी वो काम करेगा, बट अविश्वास के साथ यीशु मसीह का नहीं जमता। और इस 3 तारीख को आपको और मुझे इस बात का निर्णय जरूर से लेना है कि आसमान के खुदा, मैं अविश्वासी नहीं रहूंगा, मैं विश्वासी बुलाया जाऊंगा, मैं विश्वासी रहूंगा, मेरे हर खून के बूंद में विश्वासी होगा, मेरे हर फाइबर में विश्वास होगा। परमेश्वर जब तू ऊपर से देखेगा तुझे विश्वास नजर आएगा। You will see faith. Hallelujah. जब परमेश्वर ने, जब when Jesus told his disciples, you in my name you tell this mountain to move, मेरे नाम से इस पहाड़ से कहो विश्वास के साथ कि ये वहां से उठकर पानी में जाके गिरे। He was not giving a superficial example. वो सिर्फ ऐसे कहने के लिए एग्जाम्पल नहीं, ऐसे हो जाता है, नहीं, he meant it. He meant it. I pray and I prophesy every mountain in your life, वो हर एक प्रॉब्लम जो आपके जीवन में एक पहाड़ के मानिंद खड़ी है, आज यीशु मसीह आपके विश्वास के द्वारा और उसकी सामर्थ के द्वारा उस पहाड़ को समुंदर में फेंक देगा। हालेलुया। So with that faith, with this kind of faith, इस प्रकार के विश्वास के साथ, what can you believe? With the power of God and with faith. Somebody say with power of God and with faith. What can happen? Something can happen in 24 hours. कुछ तो 24 घंटे में हो सकता है। बहुत सारी दुआओं का उत्तर आपका 24 घंटों में मिल सकता है आपको, बट क्योंकि आप चाहते हैं कि लड़ाई लंबी हो, आपको 24 घंटे में उत्तर नहीं मिलता। Because you want the battle. Many people want the battle to be long. Many people, आपको क्या लगता है? You have been, आप सुनिए, when it comes to God, when it comes to God, anything can happen. Right? When it comes to God, you decide what you want God to do for you. You decide. कितने लोगों को 38 साल का बीमार मालूम है? 38 साल, 38 years, the man was a pool where angels came. स्वर्गदूत आए। Now listen, ये आदमी आया, ये बैठा हुआ था, ये लंगड़ा था बेचारा। यीशु मसीह आए and he asked, do you want to get healed? क्या तू चंगा होना चाहता है? And what was his answer? I have nobody. You can have Jesus standing in front of you and miss your miracle. That's the reason many times you come to the church and you miss the miracle. It's because of unbelief. Hallelujah. 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 आज क्या समय हो गया है? 7:30 हो गया है। कल शाम के 7:30 तक, बोलिए कल शाम के 7:30 तक आसमान का खुदा काम करेगा। God will work it out. When this guy was sick for 38 years, Jesus did not need 38 days to heal him. जब ये 38 साल का कोड़ी 38 साल से बीमार था, प्रभु यीशु मसीह को 38 दिन नहीं लगे उसको ठीक करने के लिए। आधे चैप्टर में ये बंदा ठीक हो गया।
Within half chapter, this guy was all right. And the same God that healed that man is the same God you and me serve. वही परमेश्वर है जिसकी आप और मैं खिदमत करते हैं. Hallelujah. Lift up your right hand. Every problem that has been prolonging for more than a year, वो कोई भी प्रॉब्लम जो आपके जीवन में, शरीर में, परिवार में 1 साल से ज्यादा हो गया है, टुडे इज द एक्सपायरी डेट फॉर दैट प्रॉब्लम. टुडे इट्स द लास्ट डे. आज आखिरी दिन है. माई गॉड हु आई सर्व, माई गॉड हु आई सर्व विल गेट इट डन इन 24 आवर्स. 24 घंटों में आसमान का खुदा उत्तर देगा. Hallelujah. Hallelujah. God is good. God is good. So that is the reason we are fasting and praying. We are pushing ourselves to receive the power of God. आप देखिए प्लम्बर देखा प्लम्बर. A plumber wearing the coat of a plumber getting to a house does not solve the problem. Just because मैं preacher हूं और मैं शर्ट पैंट पहन के जूते साफ करके आपके सामने खड़ा हूं बोल सकता हूं, it does not solve the problem. That's why Paul says कि I do not come with intellectual. मैं बहुत सारे शब्दों के साथ नहीं आता हूं. Have you seen Pastor Ankur Narula? देखा आपने? His is the largest church in India and the whole world right now. The American embassy invited him and उनका सत्कार किया American embassy ने, because the number of following people he has in America, it can overturn the city's political climate. Are you listening? If you hear Pastor Ankur Narula, he will speak so simple. इतना सिंपल बात करेंगे, आप बोलोगे यार ये आदमी, आप ऐसे लगेगा ये क्या हो गया. But you see the church that is growing. Because Paul said the same thing. मैं शब्दों की बहुतायत से आपके पास नहीं आता हूं, मैं परमेश्वर की सामर्थ के साथ आता हूं. That is what you and me will be today. We will not just be merely speakers and preachers and singers. We will be the carriers of God's glory. हम परमेश्वर की महिमा को लेके जाने वाले पात्र रहेंगे. That's the reason yesterday what we did. We cleaned ourselves and made ourselves honorable vessels. That honorable vessel एक आदर या बर्तन जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है. We made. That's the reason we clean ourselves. और आप में से बहुत से लोग 3 दिनों में आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे अंदर से बहुत फैट निकल गया है, मेरे अंदर से बहुत गुस्सा निकल गया है, मेरे अंदर से बहुत चीजें कम हो रही है. आप देखिए किस दिन खाली हो जाएंगे और आसमान खुदा अपनी सामर्थ से भर देगा. हालेलुया, हालेलुया. आप अगर बजाते हैं, आपकी दुआ होनी चाहिए कि खुदावंद 21 दिनों के बाद मैं सिर्फ बजाऊं नहीं, पर मैं स्वर्ग को धरती पर लेकर आऊं. इट शुड बी योर प्रेयर. I'm not just a preacher in a preacher's coat speaking words, शब्द से कहूं, because there are problems that are needed to be solved. ढेरों problems हैं जिनको solve करना जरूरी है. And the world already has a lot of people who are good orators. दुनिया के पास ऐसे बहुत लोग हैं जो अच्छे से बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, but बहुत कम लोग हैं जो खुदा की सामर्थ को अपने साथ लेकर चलते हैं. हालेलुया. अपना राइट हैंड उठाइए, कल का डिक्लेरेशन रिपीट करिए. द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी एंड ही हैज अनॉइंटेड मी. परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और उसने मेरा अभिषेक किया है. हालेलुया. द स्पिरिट ऑफ गॉड इज अपॉन मी. मैं दुआ करता हूं, आज मेरी दुआ है ये, दैट ईच वन ऑफ यू goes out with these 2 things. One is faith and one is the power of God. विश्वास और परमेश्वर की. आपको मालूम है उपवास प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? ढेरों अलग अलग कलीसिया के लोग भी जुड़ रहे हैं. हम नहीं कर अपना चर्च अपना, नहीं, जितने लोग जुड़े वो इस प्रकार से परमेश्वर की सामर्थ को अपने अंदर ले कि जहां जहां पर वो रहते उस जगह को हिला दे. हालेलुया. दूसरा राजा 7 वचन. Somebody said 24 hours. बोलिए ना 24 hours. You are giving a timeline for God and you are giving a deadline to the devil. आप परमेश्वर को एक टाइमलाइन दे रहे हैं 24 hours and you are giving a deadline to the devil that it has to be done this day.
See, none of the days of fasting and prayer are wasted. We are not waiting for the climax on the 21st day. It doesn't work that way. हम कुछ बड़ा होने के लिए नहीं रुक रहे 21 दिन पर. Whenever the anointing of God hits, the service is over. हम वचन तक नहीं रुकते कि परमेश्वर का अभिषेक आए. पहले गीत में परमेश्वर का अभिषेक आ सकता है और हम वही करेंगे जो परमेश्वर का आत्मा लीड करेगा. हालेलुया, हालेलुया. पहले मालूम है जब मैं प्रचार करता था, आई यूज्ड टू हैव समबडी ऑन द कीबोर्ड ऑलवेज टू प्ले सो दैट आई कुड फील माय सर्मन. Little did I know that it is not about me, it is the word that has been preached. So when you preach the raw word of God, you need less things to make it powerful. जब आप परमेश्वर के काम को रॉ करते हैं, जैसा वो है वैसा करते हैं, बाकी चीजों की कमी बाकी चीजों की जरूरत आपको नहीं पड़ती. Hallelujah. When you carry the power of God raw, you will not have to give explanations to people why somebody not got healed. Hallelujah. 2 Kings chapter 7. Somebody said 24 hours. Then Elisha said, hear ye the word of the Lord. Thus saith the Lord, tomorrow. Somebody said tomorrow. By this time. Hey, बोलिए ना, कल इस समय तक. किसके जीवन में 5 साल से एक प्रॉब्लम चल रही है? 5 years, the problem is still on. कोई है यहां पर? हाथ उठाए. इस बात को बोलिए. देखिए, मुझे मत बोलिए. यह परमेश्वर का वचन है. खुदा के नबी ने इस बात को बोलिए, कल इस समय तक. अगर आप चाहते कि वो प्रॉब्लम आपकी 1 और साल चले तो चलेगी, बट अगर आप कह रहे कि नहीं, आज कल इस समय तक जो प्रॉब्लम आपकी 5 साल की है, इस 24 घंटे में सॉल्व हो जाए, आसमान का खुदा करेगा. You know, my sister is in New Zealand, and I remember I was in Lucknow, and Pastor Tak Bana in Lucknow, एक खुदा की सेवा के टाक बाना, he usually comes to Lucknow to preach. So वो pastors leaders conference था, and my sister, it was February, the month of February or March, and my sister had to find a job anyhow. किसी भी हाल में मेरी बहन को जॉब ढूंढना था, otherwise she would have to come back to India. And it is a big investment, right? जब कोई यहाँ से बाहर जाता है, बहुत पैसा लगाया जाता है. So we were all praying. And I wanted to, क्योंकि I was always on the sound system in Lucknow, तो I never got to meet people personally. Like meeting होने के बाद कैसे आप जाके मिलते लोगों से, मैं नहीं कर पाता था. But that day, when the meeting got over, me and my brother Sam, we came to the airport. हम एयरपोर्ट पे आए, and I should not call it coincidence, but उसी समय ये पास्टर और उनकी टीम, प्रेयर वॉरियर्स की टीम, ये भी वहां पर थे. They were also there. So as soon as I saw pastor, I ran, मैं भागा और मैंने से कहा, pastor, I just need one prayer for my sister. And they said, talk to my prayer warriors. So they had dedicated prayer warriors. Today, preachers carry bodyguards. We should be carrying prayer warriors. People who can fight battle in the spirit. So this pastor was carrying prayer. He had prayer, and I went, and this very simple guys. And on the airport के ऊपर ही, they just held my hand and they just prayed a simple prayer. The next thing I know, within 2 or 3 days, she got a job. जो बहुत समय से नहीं हो. That's called a 24-hour turnaround. 24 घंटे में, it just turned around. Hallelujah. Somebody say, it can happen to me. And it will happen to me. On this 3rd day of fast, this will be the day you will remember in your life. ये तीसरा दिन आप अपने जीवन में याद रखेंगे कि आसमान के खुदा ने 5 साल, 7 साल, 10 साल की प्रॉब्लम को 24 घंटे में आपके लिए सॉल्व कर दिया. Hallelujah. Listen, what did the prophet say? Thus saith the Lord, tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. Next verse 2. Then a Lord on whose hand the king leaned answered the man of God and said, behold, if the Lord would make windows in heaven, might this thing be? And he said, behold, thou shalt see it with thine eyes, but thou shalt not eat thereof. हिंदी में लिखा है, तीसरा वचन, दूसरा,
तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश में के झरोके को भी खोल दे. दैट्स फ्रॉम वेयर वी हैव गॉट द टर्म ओपन द विंडोज ऑफ हेवन. ये आदमी को कितना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, देखिए कि वो कह रहा है कि अगर परमेश्वर भी द्वारों को खोल दे. कई बार आपको मालूम है आज का कल्चर क्या है, टुडेज कल्चर, यंग पीपल, आई एम टॉकिंग टू यू, बिकॉज आवर पेरेंट्स, हमारे माँ बाप जो थे, दे वर वेरी डिपेंडेंट ऑन पीपल समहाउ, बिकॉज टेक्नोलॉजी वॉज नॉट सो अपडेटेड एंड अपग्रेडेड. माँ बाप काम करते थे, उस जमाने में 8 बच्चे होते थे, 4 बच्चे होते थे, 5 बच्चे होते थे. यू नो माय पेरेंट्स जनरेशन बहुत बच्चे होते थे, क्योंकि घर पे एक आर्मी लगती थी. कोई आटा मल रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, तो एक आर्मी होती थी मेरे जमाने के माँ बाप के टाइम पे. सो मैं ये कह रहा था कि इसीलिए हमारे माँ बाप जो थे, दे वर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स. हस्बैंड वाइफ, पापा काम करेंगे, जो सैलरी आएगी उसमें मम्मी थोड़ा सबको पढ़ाएगी, किसी को फुल पैंट मिल रही है, किसी को हाफ पैंट मिल रही है क्रिसमस का, यू नो ऐसा था. मेरे जनरेशन में सब कुछ बदल गया. मेरा जनरेशन ये पूरा तरीके से मुझे इंडिपेंडेंट करने के लिए देखता है, और इस चक्कर में मसीह ने कभी नहीं आना चाहिए कि मैं अपने आप से सब कर लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना. बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गॉड. God does not want us to be independent. He wants us to be dependent on Him. Can you say an amen? Be dependent on God. इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दे रहे, नहीं, आप करिए जो आप करते हैं, बट परमेश्वर पर ईमान रखिए, परमेश्वर पर. ये राजा का प्रॉब्लम मालूम है क्या था? ये एक दूसरे मनुष्य पर लेटा हुआ था. He was not leaning on somebody who was greater than him. He was leaning on his contemporary. Always remember this one thing, church, that a colleague can never give you anything. A colleague can never give you anything. That's why when Jesus gave this analogy, 10 लोग तेल का, 10 virgins were ready with the oil, right? मालूम है आपको, 10 कुंवारियां तेल के साथ तैयार थी. उसमें से 5 का तेल क्या हो गया? The lamp went out, the Bible says. So ये 5 कुंवारियां दूसरे 5 कुंवारियों के पास गई, कहने लगी, please give us some oil. But these virgins, they said, we cannot give you oil. You have to go somewhere where you can buy the oil. What they were saying, in other words, is you and me are colleagues. We cannot share the anointing. You have to go to someone who greater, who carries the anointing and who is the source of anointing. That is the reason we have come here, so that you don't depend on me or some person, but we all depend on Jehovah. That your family depends on God. Hallelujah. बड़े से बड़ा आदमी गिर जाता है चर्च, बड़े से बड़ा अमीर आदमी गिर जाता है, बड़े से बड़ा खानदान छोटा हो जाता है, बड़ी से बड़ी जमीन एक चाल में आके छोड़ देती है. पर वे जो यहोवा पर विश्वास रखते हैं, they that have their eyes on the Lord, they that have their eyes on the Lord, जिनकी आंखें, आज मैं चाहता हूं कि अपनी आंखें यहोवा पर लगाइए. Put your eyes on God. He will never disappoint you. अपनी नजरें खुदावंत पर लगाइए. हालेलुया. और आप दरवाजों को ऐसे खुलते हुए देखेंगे. And this guy, this king, जिसके ऊपर he was leading, that सरदार, he doesn't have a say in the system. उसको ये जो खुदा का सेवक राजा से बात कर रहा है, उसमें सरदार का क्या काम है? वो तो तकिया का काम कर रहा है. बट वो कहता है कि अगर खुदाबाब स्वर्ग के झरोके को भी ना खोल दे तो भी ये काम हो नहीं पाएगा. अब इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़िए, पहले दूसरे वचन में पता चल जाता है कि जो आर्मी थी, द आर्मी दैट वाज दीस पीपल वर फाइटिंग, वो कैसे खत्म हो गई, और उनका सारा राशन पानी एग्जैक्टली जो वर्स 1 में लिखा है उस कीमत पर बिक रहा था. एक चैप्टर बाद. हालेलुया. That is the faith you need to carry today back home.
Nothing less. Don't wait for 21 days to get over and get answered prayers. The God that can answer your prayers on the 21st day is the same God that will answer your prayer now. As a matter of fact, I am already expecting many calls. I'm expecting a call for my land. I'm expecting a call for my bus. I'm expecting a call for my house. I'm already started expecting things because the God I serve can do it now. 24 hours. Timeline for God, deadline for the devil. Hallelujah. And don't be discouraged if you don't see a physical result. कि नहीं हो पाया, कोई बात नहीं. It already began in the heavenly realms. आत्मा के आये में शुरू हो जाता है. That's why Daniel chapter 10 आप देखेंगे, Gabriel came down to meet Daniel. And when Gabriel जब नीचे आया तो कहने लगा, दानियल जिस दिन तूने दुआ करी, the first day you prayed, God answered you. परमेश्वर ने तुझे जवाब दिया. The answer of your prayers are already on its way. Can you say amen? आपकी दुआओं का उत्तर ऑलरेडी आ गया है. बोलिए आमीन. मुझे नहीं मालूम आप क्या मांग रहे हैं, आपकी क्या रिक्वेस्ट है, आप क्या करना चाहते हैं, वो उत्तर आ गया है. और बहुतों को उत्तर आज मिलेगा, बहुतों को आज रात के 12 बजे के पहले मिलेगा, बहुतों को कल सुबह मिलेगा. उत्तर मिलेगा जरूर, क्योंकि खुदा का सेवक अगर कहता है होगा तो परमेश्वर उसके वचन को कभी गिनने नहीं देगा. हालेलुया. अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे. विथ फेथ, विद द पावर ऑफ गॉड, विथ फेथ एंड विद द पावर ऑफ गॉड, विश्वास और परमेश्वर की सामर्थ के साथ, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट प्रेइंग टुडे. प्रे, लॉर्ड, in the name of Jesus, this third day will be the highlight. ये तीसरा दिन मेरे उपवास और प्रार्थना का मेरा हाईलाइट रहेगा. Many of you are asking for an answer, but I will tell you the best way God will answer you is through His word. आप में से बहुत से लोग एक जवाब मांग रहे हैं. You are asking for a word from the Lord. You want to see the physical word. And I tell you today, as you open your Bible as you go back home, जब आप अपने पवित्र शास्त्रों को खोलते हो, जब आप घर लौटते हो, today the God that I serve will answer you with a verse. He will answer you today. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tomorrow by this time you will come with a testimony. कल इस समय तक आप एक गवाही के साथ लौटेंगे. Now you have to pray. Put it in front of God, whatever that is. 38 साल से भी क्यों ना होगा, आसमान के खुदा को आधा चैप्टर लगता है उस बीमार को चंगा करने के लिए. It does not take God 38 days to heal a sick person. Whatever it is, tomorrow by this time, don't have unbelief. That is what that father said. I know you can do it, but मेरे अविश्वास का कुछ उपाय कर. Treat my unbelief. Today, I pray that the spirit of unbelief and fear leaves your body forever. अविश्वास की दुष्ट आत्मा, अविश्वास, ये आपको और आपके शरीर को आज हमेशा के लिए छोड़कर जाता है. And you go back by the Spirit of God. The Spirit of God is upon us. परमेश्वर का आत्मा आप पर और मुझ पर है, और उसने आपको और मुझे अभिषेक किया है.